We will wait for 2 minutes. At least the participants are joining. ऑडिट में इतने सब बिजी है ना ऑफिस एक्टिविटी में. Really, last 15 days it's very difficult for members to participate in the meets. Actually. नवंबर में भी वही हाल था, दिसंबर में भी वही है. Actually, मुझे लगता है कि during first 5-6 months, members have attended lot many webinars and so. Yes. The subject specific participants are coming. Yes, absolutely. Now that craze is gone, now people are started working from their office or they are started working from home also. तो दोनों चीजें हैं full fledged और साथ में अभी subject wise जैसे आपने बताया वही हो रहा है. नीलेश भाई एकदम अटैकिंग मूड में है. मुझे दे दिया फट से. How are everyone at the institute? All well. So, Nitin bhai, you are in the equity analysis or Risk management. risk management? Sir, that answer is only one today. Risk है तो risk है. नितिन भाई फ्रीज हो गए, लगता है उनका नेट गया है फिर से. ये बात ज्वाइन कर लिया. Yes. Yes, Lalit, we can start now. Morning members, welcome to the 38th virtual CP meeting of Borivali Central CP Study Circle. And today we have a subject of risk management and strategies in current market condition of the share market. We have with us learned speaker Mr. Nitin Kedia ji, and it's a CB is celebrating the Investor Awareness Week. So the WRC has taken this task to spread the awareness of the investment among the investors. So for that, WRC has requested or suggested us to conduct this particular virtual CP meeting. So with us, we also have Honorable Chairman of WIRC, CA Lalit Bajaj sir. May I request Lalit Bajaj sir to give a keynote address, please? Learned faculty and expert on the subject, Mr. Nitin Kedia. My friends and leaders at Study Circle, Borivali CP Study Circle, Lalit Panchal, Nilesh Varsa, Vijay Jayam, Pradeep Chandwani ji, seniors, friends and colleagues. On behalf of WIRC and Borivali CP Study Circle, I welcome all of you in this August gathering, wherein we are supposed to deliberate on aspects of risk management related to primary and secondary market. At the outset, let me convey my deep regards to all of you that this was an initiative of WIRC that let us, because we have seen that in the last 7-8 months, there has been huge increase in surge in opening of demat accounts of retail investors. So we as chartered accountants, we have a big responsibility as to the compliance part of the investments made by our clients, and at the same time to ensure that their investments is safe and generates the maximum wealth which is possible. So this was an idea, and I spoke to Lalit, and he was kind enough to agree, and we planned a wonderful program. So thanks, and I would like to really thank the seniors of Borivali CP Study Circle who have really, with their hard work in the past so many years, brought laurels to the study circle, and because of which
we all are able to function and are enjoying the fruits of the efforts put in by the seniors. So, high gratitude from my side and the whole team at WRC. As far as today's subject is concerned, I believe that some of the younger members are there in the participants. I have been speaking to members at large and have been understanding that what are the areas where you are looking for develop your. And let me share you very frankly that many younger chartered accountants have conveyed a feeling that they want to develop a career as analyst. But when we speak to other side of the industry, the people who employ or say the people who take services of chartered accountants, their opinion is we are not in a position to get best of the deliverables from chartered accountants, because of which we have to equally focus on other professionals also. Let me share with all of you friends, these sessions are really planned to enable all of us and understand the basic requirements and the basic principles of the analysis as far as debt equity market is concerned. So I think so we are trying to just develop a skill set among the younger generation so that they can go in this line. Moving ahead, WRC, I have come a couple of months back, 3-4 months back. I have shared a lot many things what we all are doing, what we are doing at WRC. Just a couple of things we would like to share as of now. We have launched a mentorship assistance program a couple of days back, whereby we are giving a facility or say an option to the members to become mentees, and at the same time just senior members who have huge experience whether in industry or practice to become mentors and ensure that the mentees are really guided as far as how to move ahead in the career, and at the same time how to go into an ethical set of practice and to understand the opportunities available for all of us. So there are 2 modules. I think so. Visit WRC website, go through the tab available on WRC website. You will get all the details. Whoever intends to be mentor or mentee, please fill in the details on the tab. We will be more than happy to ensure that this initiative is really taken ahead with the efforts of all of you for the benefit of the professional brothers and sisters. One thing which we have started recently is we have launched a couple of days back e-publication on hospitality industry. 10 days back we have launched e-publication on logistics industry. 3 more industry publications are in pipeline. The basic idea is any chartered accountant who is working in this industry or say giving consultancy to this sector can really go through the basic requirements, basic intricacies of this particular industry as far as various laws, accounting and other allied laws are concerned. So these publications are very useful, and the members who are behind this have put a lot of efforts and energy to come out with this publication. So please, you can freely download this publication and take benefit of the same. Last thing which I would like to share with you is we are announcing shortly within next 10 days a women empowerment initiative wherein it will again be launched on WRC website, and the women chartered accountants who are out of profession because of some family commitment or other commitment and are now intending to come back to profession, we will be posting the list of those members because they have filled the Google form and intended to share their interest in being part of this. So we will list them without sharing the contact details, and whoever from all across India will try to touch upon them, they will get a message or say intimation that so and so firm is trying to contact you, and the woman member has to communicate as per her interest and availability. And this is what we are trying to ensure that the women member who are coming back to profession, we can do our bit to ensure that they get the average
opportunity which is available in the industry as of now. This was all from WRC side. Let me share with you very honestly that Borivali City Study Circle under the dynamic leadership of Namit Panchal and his team is doing a wonderful job, and being Nihar Jambusaria ji a mentor and guide for the study circle, I believe he is the best of the person in the whole CA fraternity to come out with the best professional interest, thought and ideas for the benefit of all the members. We at Borivali City Study Circle are really blessed with such kind of leader at helm of the institute. I look forward for more and more happening events from Borivali City Study Circle, and really look forward for assistance from you in all the initiatives at WRC. With this, I once again thank all of you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your keynote address and your welcome speech. Now, may I request Vijay JM to take the session further? Thank you, Lalit Bajaj ji, for gracing this occasion. So let us start our formal meeting by playing our institute motto. I request all the members to kindly raise for the motto. यैष सुप्तेषु जागृति यैष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः अदेव शुक्रं अदेवब्रह्मा अदेवामृतमुच्यते अस्मिन् लोकः शिवः सर्वतदूताक्षरी कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Now we'll play the Code of Ethics video. पानी के
Thank you, members. Now, in today's program, we'll be seeing through the investor awareness program. Members, all you'll be aware that a chartered accountant's favors practice is not in practice of accountancy, but in stock market. So, institute has thought it fit, or rather, there was a lot of queries whether a chartered accountant can trade in FNO or not. But the ethical standard board of the ICAI said that no, they cannot deal in FNO tradings. So this will create a lot of problem for those practicing chartered accountant who are already into the trade. So I request our chairman Lalit Bajaj ji to take this matter with the institute and make some relaxation in this provision so that it will benefit to all the chartered accountants. As far as the investor awareness program is concerned, we have to learn what are the various market participants are there. We have to learn what to invest, where to invest, how to invest, and accordingly we have to guide our clients that you have to see, you have to first study the balance sheet, you have to see all the ratios and all, then only you have to invest it. So for that, WRC has thought fit to organize a program on investor awareness program, and we are very thankful for KDIG to accept our invitation. So not wasting much of the time, I request our past deputy convener Nilesh Vasaji to briefly introduce you. Thank you, Vijay sir. Thank you, Lalit Bajaj sir, for giving me this opportunity. Nitin Kedia sir, I think needs no introduction for BCSE. I think from last 4 years, in fact, he has become a part of BCSE, and I think any opportunity given to him to work for BCSE, he has relentlessly always helped it. I think in the sports community of BCSE, Nitin Kedia sir is very famous. So today I am very pleased to welcome you, sir, for this seminar. Regarding Nitin Kedia sir, I would like to say that he carries 19 years of experience in marketing and tracking stock markets. In these years, he has worked for the groups like ICICI, Bajaj Auto, Aditya Birla, and MCX. At present, he is in a process of setting up his own stock market research firm. And I think being a topic of stock market, I think all the members are really wanted to listen to that what good news everything is going to give today. So not taking much time, all yours, sir. Nitin Kedia, sir, please take the charge of the session. थैंक यू नीलेश जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जब बीसीएसई में आते हैं तो ऐसा लगता है घर के किसी प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ललित बजाज जी का को रिगार्ड देना चाहूँगा मेरा कि संडे के दिन उन्होंने आके हमारा सबका उत्साहवर्धन किया, और विजय जी का, ललित पंचाल जी का, आपका, प्रदीप जी का और सारे हमारे जितने भी अटेंडीज यहाँ पे हैं उनका सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि संडे के दिन आप सबने टाइम निकाला। तो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, कमिंग टू द डायरेक्टली टॉपिक, हमारा जो सब टॉपिक है वो 3 या 4 टॉपिक हमने लिए थे, बट मेरा जैसे ललित जी से कल बात हो रहा था तो हमने सोचा कि लेट द ऑडियंस डिसाइड कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो मैं ललित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो पोल जो हमने बनाया था वो पोल अगर वो रन कर सके तो अकॉर्डिंगली एज पर जनता की आवाज पे हम अपना काम कर सके। I request members to answer the poll, so accordingly the Nitin sir can take up the subject.
सर मेजोरिटी वोट्स आ चुके हैं, मैं पोल एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके सर। दिस इज द रिजल्ट सर। चलिए गुड, सो विल गो विद द बहुमत एंड विल वर्क अकॉर्डिंगली। आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट, और आई थिंक ये जो 2020 का साल रहा है, इससे अच्छा साल कोई भी नहीं रह सकता रिस्क मैनेजमेंट समझाने के लिए। क्योंकि 2020 की जब स्टार्टिंग हुई तब एक डर के माहौल में हुई कि चाइना के अंदर जो है वो कोविड स्टार्ट हो चुका था, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में वो फरवरी के अंदर फैलना शुरू हो गया और मार्च आते आते उसने पूरे वर्ल्ड को अपने गिरफ्त में ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज द सेविंग ऑल अबाउट, सेविंग क्या होती है, सेविंग करना क्यों जरूरी है, रिस्क को मैनेज करना क्यों जरूरी है। जो लोग डेट में थे, जिन्होंने लोन ज्यादा ले रखे थे, उनको ईएमआईज के इशू आए, इस तरह के जो इश्यूज आए, ये इश्यूज आने के बाद रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आने लगा था। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये होगी कि इसी बीच में स्कैम 1992 रिलीज हो गई, और स्कैम 1992 रिलीज होने के बाद आप किसी से भी बात करो, ही वांट्स टू बिकम अ हर्षद मेहता विदाउट नोइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। मतलब रिस्क मैनेजमेंट जितना हमने 7-8 महीने में सीखा था, वो एक बार में वो स्कैम 1992 ने एकदम, जिसने भी देखा वो बोला अरे बहुत अच्छा। मतलब nobody saw what was the end of that person, but everybody saw कि बॉस how he from one chawl how he went and made his lux to Poonam Chambers in Worli. So but there was a lack of risk management and that was the reason कि वो उसका एंड जो होता है वो एंड एक सरकारी अस्पताल के बेंच में जाके हो जाता है। तो दिस वी नीड्स टू अंडरस्टैंड, देयर मे बी अ लॉट ऑफ स्टोरीज, आपको स्टोरीज बहुत सारी सुनने को मिलेगी। आप जब भी स्टॉक मार्केट की बात करोगे, पीपल विल टेल यू स्टोरीज अबाउट द हेवेल्स की, हेवेल्स में कैसे लोगों ने लाख रुपए का करोड़ कर लिया। विप्रो की आप बात करो या इन्फोसिस की बात करो, बट आपके आसपास कितने लोग हैं जिन्होंने वो 5 करोड़ 10 करोड़ या 15 करोड़ विप्रो, इन्फोसिस या उसमें उन्होंने बनाया है। बिकॉज जब आप शेयर मार्केट की तरफ देखते हो तो आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती है, आपको सक्सेस स्टोरीज बताई जाती है, और यही कारण रहता है बहुत से लोगों से जब आप बात करो, आप अपने घर पे बात करो, आप बोलो मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पिताजी बोलेंगे ये ले बेटा 1 लाख रुपया और जा बिजनेस स्टार्ट कर, पीठ पे हाथ रख के। प्रदीप जी, पीठ पे हाथ पड़ेगा या गाल पे हाथ पड़ेगा? सर मेरे तो पापा दे देंगे। So very few people are lucky like you. So पर्सनल में तो दे देंगे, बाकी बहुत लोग बोलेंगे नहीं, द मार्केट आउटलुक इज नॉर्मली सच दैट पीपल विल गो आउट ऑफ दिस। तो उसका रीजन क्या है कि जब शेयर मार्केट में लोग आते हैं ना, तो एक दिमाग में परसेप्शन होता है कि मैं 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ और ये ओवरनाइट ये पैसा जो है वो 1 करोड़ हो जाएगा। तो जैसा कि आज आप लोगों ने पोल किया, फंडामेंटल्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं या आप लोग बेसिक्स ऑफ चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, वेदर आप फंडामेंटल्स की बात करो या आप बेसिक्स ऑफ चार्ट्स की बात करो, आप अगर इनको डीप स्टडी करोगे और आप इनको फॉलो करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट्स में लॉसेस नहीं होंगे। और देयर आर सर्टेन एग्जांपल, पीपल लाइक राकेश झुंझुनवाला, पीपल लाइक Bhandari's, people like Vijay Kedia, many people are there, those who have made their fortunes in the stock market. And how they have made their fortunes in the stock market, कि उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर स्टडी के साथ में किया हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मैं आपको पहला एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, आप फ्रिज, एसी ये सब आप सेल करते हो, तो क्या नवंबर के महीने में आप एसी स्टॉक करोगे अगर कंपनी डिस्काउंट नहीं दे रही है? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आज आपने नवंबर के महीने में आपने एसी स्टॉक किया तो एसी जो बिकने वाला है वो 15 मार्च के बाद ही उसकी सेल स्टार्ट होगी, यानी नवंबर से लेके मार्च तक आपका जो पैसा है वो ब्लॉक रहेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे किसी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो एसी बनाती है, तो क्या अक्टूबर नवंबर का सही समय है वो इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, बिकॉज उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो सेल्स आने वाली हैं करंट क्वार्टर्स की, दे आर गोइंग टू कम लो टिल नेक्स्ट क्वार्टर। तो जिस समय वो रिजल्ट खराब आ जाता है, वो फैक्टर इन हो जाता है और तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बोला, ललित बजाज जी ने, कि लोग जो हैं वो सीए की तरफ देखते हैं कि वो उनको एडवाइस जो देंगे वो एक
परमानेंट एक अच्छी एडवाइस देंगे। और मैं आपको अपने 19 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेके लोगों के पास गए हैं, हमने लोगों को बताया है कि आप इस तरीके से अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो सब कुछ समझने के बाद उसका लास्ट आंसर यही होता है कि लेट मी स्पीक टू माई सीए, लेट मी स्पीक टू माई चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन आई विल कम बैक टू यू। बिकॉज उसको ये पता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एडवाइस है, चाहे वो मेरे इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो मेरे एडवांसेस की है, वो सही एडवाइस अगर मुझे कहीं से मिल सकती है तो दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम माई चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड द फर्स्ट लेसन या फर्स्ट थिंग दैट वी टेल टू द पर्सन इज कि सर रिस्क क्या है इसमें, रिस्क क्या है। अगर हमने रिस्क को समझ लिया तो आप ये मान के चलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इज गोइंग टू बी द बेस्ट, वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ स्कैम में जिस तरीके से लाइन दी और लोगों ने उसको, मैंने 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 जब बात करी बहुत सारे एफ एंड ओ ट्रेडर से, दे यूज टू से मी व्हेन आई टेल देम कि बॉस ये जो आप स्ट्रेटेजी कर रहे हो इसमें रिस्क है, 3 of the people told me on my face that बॉस रिस्क है तो इश्क है, when US elections were happening। और वो इश्क में कैसी बेवफाई हुई उनके साथ मैं जानता हूँ अच्छे से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क कि बॉस रिस्क क्या है। तो रिस्क में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कंपनी क्या है, कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, या कंपनी न्यूट्रल है। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं। ये हम कैसे देखते हैं? क्या हुआ सर? आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन, वो नहीं है। Yes, yes. Okay. ललित जी, माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, absolutely. फंडामेंटल्स में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो हाउ टू चेक वेदर इट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड? इसको चेक करने के दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दूसरा प्राइस टू बुक रेशियो। ये दो पैरामीटर्स हमें बता देंगे कि कंपनी का स्टॉक जो है वो अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो? प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज योर करंट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर को आप करंट प्राइस से जब डिवाइड कर देते हो तो आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी स्टॉक का करंट प्राइस 1000 रुपए है और उसका ईपीएस जो है वो 20 रुपीज है, तो उसका जो पी रेशियो आएगा दैट विल कम अराउंड 50। नाउ व्हाट दिस पी रेशियो इज टेलिंग मी? वो पी रेशियो मुझे ये बता रहा है कि ये स्टॉक जो है वो अगले 50 साल की अर्निंग पे आज ट्रेड कर रहा है, तो आज मुझे ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये मुझे कैसे डिसाइड करना चाहिए? मुझे ये सबसे पहले ये देखना चाहिए या सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या इस कंपनी की ईपीएस आने वाले टाइम पे बढ़ेगी, क्या इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। अगर ये अर्निंग पर शेयर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे नहीं बढ़ेगा तो मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जैसे आपको मैं एक नाम देता हूँ, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज अपने 65 साल आगे की अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है एंड पीपल आर मैड अबाउट दिस स्टॉक। कोई कह रहा है 10,000 रुपए हो जाएगा, कोई कह रहा है 12,000 रुपए हो जाएगा, कोई कह रहा है 15,000 रुपए हो जाएगा, पर जो स्टॉक 65 साल आगे की अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है उसमें एक चिंगारी, एक आपका अगर एनपीए रेशियो उसका बढ़ जाता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि वो स्टॉक जो है वो कार्ड्स की तरह ढह जाएगा। और ये हमने देखा भी था कि जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ 4500-4800 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और नीचे में 1800 तक आया, यानी लोगों के इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो 40% 50% ही रह गए थे। तो जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उसको इस तरह के स्टॉक्स में स्पेक्यूलेशन नहीं करनी चाहिए।
जिसका पी रेशियो 20 या 22 के ऊपर है, अनटिल अनलेस उसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो, अनटिल अनलेस उसमें आपको ईपीएस की जो ग्रोथ है वो आपको दिखती हो। प्राइस टू बुक रेशियो, आपका बुक वैल्यू जो है सपोज किसी कंपनी का है 100 रुपीज और प्राइस है 1000 रुपीज, तो प्राइस टू बुक रेशियो जिसको हम लोग पीबी रेशियो भी बोलते हैं, इट कम्स अराउंड टू 10, विच इज अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जिस समय यस बैंक क्रैश करना शुरू हुआ था उस समय यस बैंक का जो प्राइस टू बुक रेशियो था वो 8 और 9 पे चल रहा था, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्राइस टू बुक रेशियो था वो 0.25 0.3 के आसपास चल रहा था। अब पब्लिक सेक्टर बैंक, यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू ऑल वेरी वेल नो अबाउट द बुक वैल्यूज ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, सो आई विल नॉट गो एंड कमेंट ऑन दैट। बट अच्छे से अच्छा अगर मैं उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूं, मैं एचडीएफसी की बात करूं, तो दे वर ट्रेडिंग अराउंड 6 to 7 टाइम्स ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो जहां पे आपका अगर कोई भी स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 3 के ऊपर हो जाता है या 3.5 के ऊपर हो जाता है, तो वो स्टॉक को एक्सपेंसिव माना जाता है, और हम उस स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि इस कंपनी का बुक वैल्यू आने वाले 2 या 3 साल में बढ़ेगा। तो फंडामेंटली आप अगर हम बात करें तो दीज टू थिंग्स जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो, ये हमें बताते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। 2018 की बात करें तो हमने बीसीएससी के साथ जब पहला प्रोग्राम किया था तब हमने लोगों को बोला था कि हमें शुगर स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसका कारण था कि वो उस स्टॉक्स जो थे वो उस समय अंडर वैल्यूड थे। अगर मैं किसी भी शुगर कंपनी का पी रेशियो उस समय देख रहा था तो वो 3 और 4 के बीच में चल रहा था, और बुक वैल्यू जो चल रही थी वो 0.8 के आसपास चल रही थी मैक्सिमम शुगर स्टॉक्स की। और शुगर जो उस समय ट्रेड हो रही थी वो 29-30 रुपीज ट्रेड हो रही थी। इलेक्शंस होने वाले थे तो ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट फार्मर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शुगर के भी दाम बढ़ा सकती है। तो 3 या 4 की जो पी थी, हमें लग रहा था कि अब यहाँ से ईपीएस बढ़ने का एक समय आ चुका है जहाँ पे आने वाले समय में इनके ईपीएस भी बढ़ेंगे और इनका पी एक्सपेंशन भी होगा। पी एक्सपेंशन का मतलब ये होगा कि आज अगर ये स्टॉक 3 या 4 की पी में ट्रेड हो रहा है तो आने वाले टाइम पे ये 8 या 10 की पी में ट्रेड होगा। तो हमारा एजम्पशन था कि अगर आज 20 की ईपीएस है तो 30 की ईपीएस हो जाएगी, 4 का पी है तो 10 का पी हो जाएगा। यानी अगर मैं आज के भाव की बात करूं 80 रुपीज का भाव है, 20 का ईपीएस 4 का पी, तो ये जो प्राइस है ये बढ़ के 300 रुपीज हो जाएगा, बिकॉज ईपीएस आपकी 30 हो जाएगी और पी जो है वो 10 हो जाएगी। ये 300 का प्राइस 5 साल 6 साल के अंदर इसमें आना चाहिए। एंड वी वर लकी एनफ, जैसे मैं द्वारकेश शुगर की बात करूं तो हमने 13, 14, 15 रुपीज के आसपास उस समय इन्वेस्ट किया था, वेंट टू 35 रुपीज। बलरामपुर चीनी जो है वो विद इन 7-8 मंथ्स डबल हो गया था। एंड द शुगर स्टॉक्स कंटिन्यूज टू डू वेल बिकॉज एथेनॉल से रिलेटेड उनको बहुत सारे ऑफर्स आए, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने दी। हमें उस समय नहीं पता था क्या स्कीम आने वाली है, क्या आने वाला है। हमें बस ये दिखा कि ये जो सेक्टर है, ये जो शुगर सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और ये जिस तरह से अंडर वैल्यूड है वहां पे हमें एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे आज हम साउथ इंडियन बैंक की बात करें, आप साउथ इंडियन बैंक को उठा के देख लीजिए, आज वो एक बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक लगता है। या आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओवरऑल बात कर लीजिए तो पब्लिक सेक्टर बैंक आज भी बहुत अंडर वैल्यूड लगते हैं। और हमें लगता है कि आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में आपको ये एक अच्छा निवेश का मौका देते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न का मौका दे सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कमाई को, आप अपने सेविंग्स को आप मल्टीफोल्ड्स इनमें कर सकते हो। तो जहाँ हम स्टॉक का देखते हैं पहले कि कौन से स्टॉक में आपका जो अंडर वैल्यूड है, उसके बाद फिर हम सेक्टर में जाते हैं। अगर सेक्टर भी पूरा, सेक्टर की जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो टॉप 5 कंपनीज भी हमें अंडर वैल्यूड दिखती हैं, देन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट इन देम इन अ लैडर वे। लैडर वे का मतलब ये होता है कि आपके पास 100 रुपए है तो आप 20 रुपीज करके प्लस या माइनस में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। ऐसी एक कंपनी का और मैं नाम लूंगा, वेदांता। वेदांता का भी अगर आप बुक्स को चेक करेंगे तो स्टिल इट लुक्स लाइक एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। और इनसे भी अलावा जो फैक्टर जो आज की डेट में जो पिछले 10 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है कैश फ्लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने सुनील सिंघानिया जी से सीखा था कि कैश फ्लो अगर कंपनी का सही है
तो ये मैटर नहीं करता कि वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या वो न्यूट्रल है, बिकॉज कैश फ्लो टेल्स यू कि बॉस ये तो सब नंबर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पर मार्केट के अंदर वो कंपनी सबसे ज्यादा चलती है जिसका प्रमोटर जो है वो ऑनेस्ट है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और कैश फ्लो आपको बताता है कि प्रमोटर जो है वो अपनी कंपनी के लिए ऑनेस्ट है या नहीं। एंड यू ऑल आर द बेस्ट पर्सन टू चेक द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। आप लोगों से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता कि कैश फ्लो आप लोग कंपनी का चेक कर सको। तो हम लोग हमेशा देखते हैं अगर कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी का कैश फ्लो अगर नेगेटिव आ रहा है, बोरोइंग्स बढ़ रही है कंटिन्यूअस कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, दैट मीन्स कि वो कंपनी बर्बादी की तरफ जा रही है। वो कंपनी दूसरा वोडाफोन आइडिया हो सकती है, वो कंपनी दूसरी येस बैंक हो सकती है, वो कंपनी दूसरी DHFL हो सकती है। तो अगर किसी भी कंपनी में चाहे वो जितनी अंडर वैल्यूड हो, अगर उसका कैश फ्लो आपको नेगेटिव लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी में के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये बर्स्ट हो सकता है, इसका जो लीवरेज है वो बहुत हाई है, देन वी शुड प्लेस अ स्ट्रॉन्ग रेड क्रॉस इन दैट कंपनी। और हमें अपने क्लाइंट्स को भी, हमें अपने इन्वेस्टर्स को भी बताना चाहिए वो कंपनीज के बारे में। एंड वी शुड टेल देम कि बॉस ये कंपनी में आगे कुछ भी मटका फूट सकता है, इसलिए हमें आगे इस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड दीज 3 थिंग्स आपको हमेशा, आपने बहुत लोगों ने मतलब कुछ अच्छी चीजें स्कैम में थी जो ध्यान नहीं दी। जैसे स्कैम में पूरा मार्केट बोलता है कि पी रेशियो इतना बढ़ रहा है, बाजार कैसे सस्टेन करेगा। और तब तब हर्षद का थ्योरी ये होता है कि मैं तो आज ये मान के चल रहा हूँ कि आज अगर एसीसी अगर अपना प्लांट लगाता है तो उसको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इतना पैसे की जरूरत होगी, तो कंपनी का वैल्यूएशन उतना होना चाहिए। सिमिलरली अगर आज की कंडीशन पे भी हम बात करें तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो ये बोलते हैं कि निफ्टी का, अगर मैं बात करूं, निफ्टी की सारी कंपनीज की ईपीएस निकालते हैं, निफ्टी की सारे कंपनीज का प्राइस निकालते हैं, और वो अगर हम देखते हैं तो वो 32-33 के आसपास चल रहा है। और 32-33 के पी रेशियो में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें बाजार में पैसा डालना चाहिए? बाजार में लोग 10,000 से ही निफ्टी को एक्सपेंसिव मान के चल रहे हैं। उनका मानना था कि 26 का या 27 का या 24 का जो पी रेशियो आ गया है, इस पी रेशियो से आपके आने के बाद निफ्टी के अंदर एक करेक्शन आना चाहिए। लेकिन निफ्टी ने कोई करेक्शन नहीं दिया। निफ्टी सरप्राइज एवरीवन एट अराउंड 11,800, और 11,800 के बाद वो आज 13,500 पे ट्रेड हो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देर आर सर्टेन टाइम्स इन द मार्केट व्हेन लिक्विडिटी जो होती है सिस्टम में, वो आपके सारे फंडामेंटल्स को ओवरलुक कर देती थी। बिकॉज 2008 में जिस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए यूएस ने सबसे पहला स्टेप लिया था कि उन्होंने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए, और वो स्टिमुलस पैकेजेस उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग के फॉर्म पे अनाउंस किए। 5 साल वो क्वांटिटेटिव ईजिंग चली। 2013 में उन्होंने, जो यूएस फेड के चेयरमैन थे बेन बेर्नार्के, उन्होंने वो क्वांटिटेटिव ईजिंग को एंड किया, और उस समय हमने देखा बाजारों में जबरदस्त करेक्शन आया, चाहे वो आपके निफ्टी सेंसेक्स रहे हो या गोल्ड सिल्वर रहे हो, हर एक तरह के एसेट क्लासेस में एक करेक्शन आया। सिमिलरली जिस समय ये कोविड का प्रॉब्लम शुरू हुआ और दुनिया एकदम बंद हो गई और सब हर तरह का प्रोडक्शन बंद हुआ, उसके बाद भी हम देख रहे थे कि जो निफ्टी है या जो वर्ल्ड ओवर सेंसेक्सेस है, वो पोस्ट में वो एक हाई की तरफ चले और आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन सिंपल है कि सर, जिस समय आपके नोट छपते हैं, जिस समय आपका हेलीकॉप्टर मनी आता है, हेलीकॉप्टर मनी जिस समय गिरता है, तो वो सारे फंडामेंटल्स को ओवरलुक कर देता है, बिकॉज वो पैसा कंटिन्यूअस सिस्टम में आ रहा है। और जब वो पैसा कंटिन्यूअस सिस्टम में आता है तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहा है, तो आपका जो मार्केट है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। वो ये नहीं देखता कि फंडामेंटल क्या हो रहा है। पर एक समय ऐसा आता है, देयर इज ऑलवेज, वेदर इट वाज अ 2009-10 रैली और वेदर इट वाज अ 2016 rally which was supported by this stimulus packages, या 2018 में stimulus packages जब अनाउंस हुए, तो समय ऐसा आता है, उस समय क्या होता है कि लोगों को लगने लगता है नहीं, अब वैल्यूएशंस जो है वो बहुत हाई हो चुके हैं, ये वैल्यूएशंस जो है वो मार्केट में सस्टेन नहीं करेंगे, और ये वहाँ पे एक सेल ऑफ शुरू होता है। और वो जो सेल ऑफ शुरू होता है, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज लिक्विडिटी ड्राइव कर चुकी होती है
लोगों के दिमाग में मतलब बियर्स जो होते हैं वो भी बुल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है, अभी तो आज सुबह लो शाम को बेचो, पैसा लेके घर जाओ। रात को कोई शाम को 3:30 बजे 3:15 बजे आपने स्टॉक लिया, दूसरे दिन बेच दिया, आप आपका पैसा बन रहा है। तो वो जो टेंडेंसी हो जाती है उसमें वहां पे हम रिस्क मैनेज करना भूल जाते हैं और वो समय होता है जब आपको रिस्क मैनेज करना है। वहां पर रिस्क कैसे आपको मैनेज करना है, बिकॉज वहां पे आपको सबसे ज्यादा फीलिंग ये आती है आई मिस द रैली। और शेयर बाजार में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो इसी फीलिंग की वजह से होता है कि आई मिस द रैली। वहां पे आपको अपने आप को डिफेंसिव सेक्टर्स के तरफ आपको मूव कर लेना चाहिए। आपको वो स्टॉक्स में पैसा नहीं डालना चाहिए जहां पे आप ऑलरेडी तेजी ज्यादा आ रही है या वो ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। बिकॉज डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ बेस्ट क्या होता है कि वो चलते हैं मार्केट के साथ, आपको रिटर्न भी देंगे, पर अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वो ज्यादा टूटते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है उनमें, बिकॉज बारिश होगी तो छतरी वाला जो आदमी छतरी लेके घर से निकला है वो भी भीगेगा और जो आदमी छतरी लेके नहीं निकला है वो भी भीगेगा। पर when you have when you have the defensive stocks in your portfolio, what will happen is कि आप उतना नहीं भीगोगे कि आप बारिश की वजह से आप बीमार पड़ जाओ। तो डिफेंसिव सेक्टर्स क्या होते हैं? डिफेंसिव सेक्टर्स हमारे फार्मा होता है, ठीक है, फिर आपका एफएमसीजी आपका डिफेंसिव में रहता है, फिर आपका कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिफेंसिव प्ले करते हैं, जैसे सीडीएसएल हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये कंपनीज के स्टॉक्स ऐसे हैं जो एज अ डिफेंसिव प्ले करते हैं, जो बाजार टूटता है तो बाजार के साथ ज्यादा नहीं टूटते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की। ओवर वैल्यूड क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, कैश फ्लो, लिक्विडिटी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ अगर आपको ये चेक करना है एक साथ तो आप कैसे चेक करेंगे, बिकॉज दैट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड screener.in। आप screener.in पे जाके आपको कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड आपको मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाती हैं। मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को शो करने का। Is this visible? Screener.in? Yes, visible. Thank you. Let's check fundamental of some company. हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेक कर रहे हैं। करंट प्राइस उसका 33 चल रहा है। स्टॉक का पी रेशियो आप देखेंगे तो 17 पे चल रहा है। बुक वैल्यू 52.9 है, यानी अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये 0.5 के आसपास होगी। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। पर एक फैक्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका नेगेटिव दिखा रहा है। दैट मीन्स कि इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न की वजह से अभी इसमें कमाई नहीं है। इसमें स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर बुक वैल्यू और पी रेशियो को अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि जब भी मार्केट चलेगा तो ये मुझे 20-25% का रिटर्न आराम से दे देगा। और आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को उठा लें तो पिछले 3 महीने में ये अपने लो से 10 या 12% अप है। तो यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। फिर इसके पीयर का कंपैरिजन मिल जाएगा आपको। इसके पीयर्स जो है वो किस पीई में ट्रेड हो रहे हैं, उनका मार्केट कैप क्या है, उनका डिविडेंड यील्ड क्या है, उनका क्वार्टरली प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, सेल्स उनकी कितनी है, ये आपको सारा मिल जाता है। फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपको मिल जाते हैं 9 क्वार्टर्स के। आपको जून 2018 से लेके आपको मिल जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि
बेसिकली वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो ईपीएस आपको मिल जाएगी, फिर इसमें कैश फ्लो भी आपको नीचे मिल जाता है, बैलेंस शीट एवरीथिंग। ये देखिए कैश फ्लो आ गया इसका। तो एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो आपको कभी भी अगर फंडामेंटल्स अपने चेक करने किसी भी कंपनी पे, तो आई थिंक मतलब आई लाइक दिस साइट मच, बिकॉज गूगल की तरह कि सिर्फ आपको जो चाहिए वो आपको बताता है। तो इसके अलावा आप इसमें स्क्रीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप स्क्रीनर अपने डाल दें कि भाई किसी भी कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट हर क्वार्टर में 20% बढ़ा, तो मुझे ऐसी कंपनीज की लिस्ट चाहिए। तो जब आप स्क्रीन्स में जाते हैं तो आप अपना क्राइटेरिया डालेंगे, तो वो आपको आपको आपके हिसाब से बना के वो कंपनी का लिस्ट दे देगा। जैसे ये देखिए ग्रोथ स्टॉक्स किसी ने स्क्रीन बनाया हुआ है, तो उन्होंने ग्रोथ फैक्टर का स्कोर लिया है कि 10 आउट ऑफ कितना है। तो बेस्ट कंपनीज आगे की ये कंपनीज है, वेल्सपन एंटरप्राइज, और ये कंपनीज जो है आगे ग्रोइंग कंपनीज हो सकती है। अगेन इनका कैश फ्लो स्टडी करिए, उसके बाद ही आप इन कंपनीज में एंटर करिए। ये कुछ स्क्रीन्स हैं जो लोगों ने पहले से बना रखी हैं, वो आपको मिलेगी। जैसे किसी ने बना रखा हाई ग्रोथ, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, और जिनका पी रेशियो कम हो, यानी ग्रोथ हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है और पी रेशियो कम है, यानी जो हम अंडर वैल्यूड की बात करें वो ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनी कौन सी है। तो आप इसमें डालेंगे तो आपको वो पूरा मिल जाता है। अब इन्होंने किया, इनको 0 रिजल्ट मिले, यानी इस तरह की कोई भी कंपनी अभी इनके स्क्रीनर पे नहीं है। आप अलर्ट भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो अलर्ट सेट करने पर अगर कोई भी कंपनी उस रेडार में आती है तो आपको उसका ईमेल इनकी तरफ से आ जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स व्हिच वी हैव कवर्ड। और नाउ वी विल मूव टू द बेसिक्स ऑफ द चार्ट, कि चार्ट्स के बेसिक्स क्या क्या हैं, क्या कैसे आप चार्ट्स के बेसिक्स को आप समझ सकते हो। तब तक अगर मैं ललित जी से पूछूंगा कि अगर हम क्या फंडामेंटल्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अगर कुछ है तो वो हम डन कर सकते हैं। There are only 2 questions till now. आप अभी आंसर करना चाहेंगे कि बाद में आंसर करना चाहेंगे? 2 क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन compliance doesn't allow me to answer, और yeah, this is a good question. The second question which has came, that the SEBI circular on the margin trading on HNI client or FPI. Sir, this is not only applicable to HNI or FPI, but SEBI has gone ahead and imposed an intraday leverage also, leverage limit also for the retail investors. तो अब आप इंट्राडे भी 4 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप मैक्सिमम 4 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। आपको सेलिंग करना है स्टॉक को, तो आपको अर्ली पे आउट डालना पड़ेगा। अगर आप अर्ली पे आउट नहीं डालते तो आपको आपकी डीपी में जो स्टॉक पड़ा है उसको बेचने के लिए भी आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। व्हाई सेबी हैज केम अप विद दिस काइंड ऑफ सर्कुलर, बिकॉज रेगुलेटर ये चाहता है कि अनवायबल वोलेटिलिटी जो है सिस्टम में वो ना आए। अनवायबल वॉलेटिलिटी जब सिस्टम में आती है और पैनिक क्रिएट होता है, और अनयूजुअल सेल ऑफ में क्या होता है, मार्केट एक बहुत तेजी से नीचे आता है और जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को ही सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए इस तरह के सर्कुलर्स आए। हाँ, इसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट सबसे पहला तो ये आएगा कि जो वॉल्यूम्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम्स कम होंगे। सेकेंड इम्पैक्ट ये आएगा कि आपका लिक्विडिटी कई सारे स्टॉक्स में कम हो जाएगी। जैसे अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स में, या मैंने इनफैक्ट ऑप्शंस में मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है, अब जो बायर और सेलर के प्राइस का गैप है वो बढ़ चुका है। मतलब पहले अगर मान लीजिए वो 10 पैसे में होता था, तो आज वो 50 पैसे में, 60 पैसे में हो रहा है, और इसका जो लॉस है वो आपको ही देना पड़ता है। बिकॉज अगर बायर और सेलर के प्राइस में 50 पैसे का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि आप 50 पैसा ऊपर खरीद रहे हो और आप उसको 50 पैसा नीचे बेच रहे हो। नितिन जी ने पूछा है ये माय व्यू ऑन द मिड कैप शेयर्स। नितिन जी, मिड कैप्स में देखिए क्या होता है, स्टॉक मार्केट का ना एक साइकिल होता है। लिक्विडिटी जब भी आती है तो लिक्विडिटी चेस करती है सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स को, और जब लार्ज कैप स्टॉक्स में जो हेज फंड्स हैं या जो बड़े फंड हाउसेज हैं, जब उनको ये लगने लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जो है वो अभी वैल्यूएशंस हाई हो चुके हैं एंड इट्स वेरी टफ कि अब ये हमको रिटर्न देंगे, देन व्हाट हैपेंस, देन दे टर्न टू मिड कैप सेक्टर, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है वो 6 महीने साल भर का प्रोसेस होता है, और अगर यह लिक्विडिटी को लेके किसी तरह का स्टॉपेज आता है, देन ओनली इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका
जो ये टाइम चल रहा है, जो करंट टाइम चल रहा है, इट इज बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा कि मेरी अपनी जितनी भी म्यूचुअल फंड्स की SIP चल रही थी, मैंने लार्ज कैप से मिड कैप में उसको 10 दिन पहले ही स्विच किया। दिस इज अ डिस्क्लोजर फ्रॉम माय साइड कि 10 दिन पहले मैं अपने SIPs को, अपना जो मेरा पोर्टफोलियो है उसको मैं लार्ज कैप से मिड कैप में स्विच कर चुका हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में मिड कैप जो है वो अच्छा चलेंगे। अनिरुद्ध जी ने पूछा है कि डज फ्लैश शेयर्स परसेंटेज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड इंटेंशंस ऑफ हाउ कैन वी कंसीडर देम इन फंडामेंटल एनालिसिस। अनिरुद्ध जी, यहाँ पे आपको प्लेज और कैश फ्लो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। अगर प्लेजिंग बढ़ रही है प्रमोटर की और कैश फ्लो कंपनी का अच्छा नहीं है, देन इट इज गोइंग टू बी एन अनदर DHFL या अनदर PC ज्वेलर्स, अनदर यस बैंक, अनदर वोडाफोन आइडिया। तो अगर कैश फ्लो आपका नीचे आ रहा है, कैश फ्लो खराब हो रहा है कंपनी का और प्लेजिंग बढ़ रही है, यू शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक्स और उनमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। शुड वन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रुप फंडामेंटल्स और इंडिविजुअल कंपनी फंडामेंटल्स? सर, अगर मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ तो आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कॉन्ग्लोमरेट है तो कॉन्ग्लोमरेट के फंडामेंटल्स के ऊपर हमें देखना है या इंडिविजुअल कंपनी के फंडामेंटल? सर, जहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट की बात आती है तो आपको कॉन्ग्लोमरेट का भी देखना है और आपको इंडिविजुअल कंपनी के भी फंडामेंटल देखने हैं। दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। भरत जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, नेस्ले, ये सबका पी रेशियो हाई है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। देयर इज नो रूल दैट पी अबाउट 20, इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। बिल्कुल सही है सर। मैंने जब ये बात बोली थी तब मैंने ये भी बोली थी कि हमें ये देखना है क्या कंपनी का EPS बढ़ेगा। अगर कंपनी के EPS में ग्रोथ हो रही है, कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, तो आप हाई पी रेशियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हमारा टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट। मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा थ्योरी ये रहता है कि मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूं जहां पे अगर रिस्क आता है, कोई भी बाजार में बियर वेव आती है, तो मेरा जो 10 रुपए है वो 1 या 2 रुपए ही गिरे, वो 50% या 60% नहीं गिरे। इस तरह के जब स्टॉक्स में क्या होता है सर, आप चाहे एशियन पेंट्स ले लें, चाहे आप पिडिलाइट ले लें, कोई भी ले लें, जब बड़ा सेल ऑफ आता है तो बिकॉज इनमें ग्रोथ हाई होती है तो इनमें लीवरेज भी हाई होता है। किसी भी स्टॉक में जिसका ग्रोथ हाई है, जिसमें आपका पार्टिसिपेशन हाई है, उसका लीवरेज भी हाई होगा। और अगर वो हाई लीवरेज स्टॉक है तो सेल ऑफ के टाइम पे आप वो लीवरेज को मैनेज नहीं कर पाते हो और वो जो आपका पोर्टफोलियो है वो नीचे आता है। तो आप अगर हाई ग्रोथ स्टॉक है तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो और उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने अभी एक स्क्रीनर भी इनफैक्ट देखा था कि जहाँ पे हमने लो पी हाई ग्रोथ स्टॉक की बात करी थी। हाई ग्रोथ हाई पी स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यस, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो स्टॉक्स के ऊपर। जरा भी कोई नेगेटिव खबर आती है, जरा भी बाजार में कुछ हल्का सा भी नेगेटिव होता है तो आपको वो स्टॉक से तुरंत निकलना है। ये चीज का ध्यान रखिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट। अगर ये दोनों आपकी ठीक है तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट से लॉस नहीं होगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, बाजार में ना पैसा निकालने से ज्यादा पैसा लगाने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मैं जितने भी इन्वेस्टर से बात करता हूँ ना, उनको लगता है अभी तक की तो रैली मिस कर दी, हम आगे मिस ना कर दें तो अभी हम हाई बीटा स्टॉक्स ले लेते हैं, विच इज वेरी वेरी रिस्की। तो अगर आप पेशेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो then you should have a mixed bag kind of thing where you can have a high growth, high quality, high PE stocks, and you can have a high growth, low PE stocks where you can have a low PE, low price to book ratio stocks. आप इस तरह के स्टॉक्स रख सकते हैं, बट अगेन हाँ, आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। सेक्टर्स इन विच वी आर बुलिश फॉर फ्यूचर सर, अभी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनफैक्ट मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू डू बेटर, बिकॉज अगर कोविड के केस में जो भी वैक्सीन आती है तो वो वैक्सीन्स जो हैं वो आपको सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज में आएंगी, और जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। कैन वी स्टार्ट इन SIP इन फार्मा और IT थीम म्यूचुअल फंड और बिल्कुल सर कर सकते हैं। बिटवीन स्टॉक बाइंग एंड SIP विच यू सजेस्ट इन बाई? सर ये डिपेंड करता है सर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या नवंबर के महीने में मैं AC बाइंग करूंगा?
अगर मैं एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बाजार में क्या हो रहा है, बाजार की छोटी बड़ी सभी गतिविधियों पे मैंने नजर रखी हुई है, तो स्टॉक बाइंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ स्टॉक बिजनेस अपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस पे के ऊपर, then I should do an SIP in mutual fund. I should give that money to a fund manager who is giving his full time to that, and through him only you should do. तो अगर आप दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा आप डिफरेंट न्यूज़ पोर्टल को दे रहे हो, आप CNBC को दे रहे हो, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप सुबह मॉर्निंग का जो 8 से 9 CNBC TV 18 इंग्लिश वाले का जो वो टेलीकास्ट आता है, आप 8 से 8:45 तक का ज़रूर देखिए। उससे आपको एक आइडिया लगता है कि पूरे दिन बाजार में क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, आगे का फ्यूचर क्या होने हो सकता है। तो वो 45 मिनट का सेशन अगर आप देख सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को वो 45 मिनट दे सकते हो, यू शुड गो विद द स्टॉक्स। अगर आप वो 45 मिनट भी नहीं दे सकते, देन आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में SIPs करनी चाहिए। SIP इन इक्विटी इज बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर। सर मेरा मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक इक्विटी के अलावा और गोल्ड के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके 2 बेटे हैं ना, तो आप इक्विटी को अपना तीसरा बेटा मान के चलिए। और जितना इन्वेस्टमेंट आप सॉरी, इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, सुबह शाम इन्वेस्टमेंट की बात करते करते, जितना खर्चा आप अपने 2 बच्चों में कर रहे हो, उतना ही पैसा आप म्यूचुअल फंड की SIP में अपने रिटायरमेंट के लिए डालो। नोबडी नोज द फ्यूचर, आपके बाकी 2 बच्चे आपकी टेक केयर करें या ना करें, लेकिन ये जो आपने तीसरे बच्चे की परवरिश करी है अपने म्यूचुअल फंड SIP में, जो आपने इक्विटीज के अंदर पैसा डाला है, वो आपको आपके बुढ़ापे की टेक केयर करेगा ही करेगा। राकेश जी आपने पूछा है 5 फंड मैनेजर्स आर नॉट एबल टू बीट इंडेक्स फंड। देखिए सर, आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज द कंप्लायंसेस डज नॉट अलाउ मी टू ऑन दैट, बट आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई लव टू स्पीक विद यू। नीलेश जी ने पूछा, इज द रिकवरी फ्रॉम कोविड ऑलरेडी प्राइस्ड इन और इज द स्टीम लेफ्ट, व्हाट कैन बी द डाउनसाइड इन केस ऑफ डिले इन वैक्सीन और अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी। नीलेश जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं कल ही इसके बारे में पढ़ रहा था, पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन आ रहा था कि इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू दैट व्हाट विल हैपन। सर अगर अभी हम देखें तो अभी जो रिकवरी आई है मार्केट में, वो एक होप पे आई है कि इकोनॉमीज आर गोइंग टू रिकवर, बट इकोनॉमीज अभी भी फुली रिकवर नहीं है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, इंडिया इज स्टिल इन अ रिसेशन बिकॉज 2 क्वार्टर हमने नेगेटिव GDP दी है, उसके बावजूद हमारा स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बिकॉज हमको ऐसा लग रहा है GST कलेक्शन जो है वो अपने पुराने लेवल्स पे आ गए हैं, और अब लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से चालू नहीं हुए हैं, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस समय ये वैक्सीन आ जाएगी तो हमें ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर वैक्सीन में डिले की जहाँ तक बात है, US FDA ने कल फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, तो डिले की तो अब कोई बात रही नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन में डिले होता है, या एग्जीक्यूशन कहीं इम्प्रॉपर होता है, या इसके कोई साइड इफेक्ट आते हैं, then we can see a 10 to 15% downside in coming future। हम 10 से 15% का डाउनसाइड इसमें देख सकते हैं। गौरव जी, आई एम नॉट ट्रैकिंग द फोकस फंड, सॉरी, बट आप मेरा नंबर ले सकते हो, मैं आपको कल इसके बारे में जरूर बता दूंगा। एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द आउटलुक ऑन गोल्ड। सर गोल्ड में की अगर हम बात करें तो जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय गोल्ड काफ़ी लो पे था, बिकॉज न्यूज़ आ रही थी कि बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो है वो लोग लाइन लगा के गोल्ड बेच रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में एक पैनिक आ गया था, तो हमने देखा वो गोल्ड सिल्वर के अंदर भी पैनिक आया। पर जैसे जैसे स्टिमुलस पैकेजेस को अगर हम देखें तो उसने सारे एसेट क्लासेस को बूस्ट किया, और वो एसेट क्लासेस से गोल्ड भी अछूता नहीं रहा, और गोल्ड में भी हमने तेजी आती हुई देखी। पर जैसे जैसे वैक्सीन की न्यूज़ आ रही थी और लग रहा था सिस्टम में रिस्क खत्म हो रहा है, तो गोल्ड में अब तक 10% का करेक्शन आ चुका है टॉप के प्राइजेस से। गोइंग अहेड बात करें तो कमोडिटी टू इक्विटी रेशियो जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, वो ऑल टाइम लो पे है। यानी इक्विटीज जो है उन्होंने कमोडिटीज को बहुत जबरदस्त तरीके से बीट किया है। और जिस समय लोगों को ये लगेगा कि कमोडिटीज चीपर है इक्विटीज से, तो ये जो फंड फ्लो है ये वापस गोल्ड में आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मतलब 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में हम
गोल्ड को वापस 52,000 53,000 पे आते हुए देख सकते हैं। नियर फ्यूचर की बात करें तो वैक्सीन के आपके जो अगर वैक्सीन सक्सेसफुल होती है तो हो सकता है कि ये नीचे में 44-45,000 का लेवल दिखा दे, पर अगर 44-45,000 का लेवल आता है गोल्ड के अंदर तो आपको इसको बाय करना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको ये 51-52,000 के लेवल्स पे दिखेगा। उसके पीछे एक और रीजन है इंडिया में बढ़ने का, बिकॉज अभी तक क्रूड ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा नीचे आया था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड बंद होने से। वैक्सीन की न्यूज आएगी तो क्रूड में भी एक तेजी बनेगी, और क्रूड में अगर तेजी बनती है तो विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन करेंसी। अगर मैं डॉलर आईएनआर की बात करूं तो डॉलर आईएनआर के लिए अच्छा नहीं है, और डॉलर आईएनआर उस केस में डेप्रिशिएट हो सकता है, आईएनआर डेप्रिशिएट हो सकता है, और अगर आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ तो इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस को वैसे भी सपोर्ट मिलेगा। एमएफ की अगर मैं बात करूं एसआईपीज के लिए सर, तो एचडीएफसी का जो इक्विटी फंड है दैट इज वेरी गुड। आप रिलायंस स्मॉल कैप मिड कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, और एक छोटा सा आप हिस्सा जो है 10% ऑफ योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप फार्मा फंड के लिए रख सकते हैं, और 15% आप बैंकिंग फंड के लिए आईसीआईसीआई बैंकिंग फंड के लिए आप रख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई फॉर बैंकिंग फंड, रिलायंस फॉर द मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी फॉर द इक्विटी फंड, और बाकी आप फार्मा फंड के लिए डीएसपी को रेफर कर सकते हैं। Somebody has asked what is the important criteria to invest in mutual fund? सर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको ये देखना है दो चीजें, उसका बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क कैन बी अ निफ्टी 50, बेंचमार्क कैन बी अ निफ्टी 500, बेंचमार्क कैन बी अ सेंसेक्स 30, बेंचमार्क कैन बी एनी ऑफ द इंडेक्स। वो बेंचमार्क क्या है और उसने अपने बेंचमार्क से रिटर्न को कितना बीट किया है, जिसको हम लोग ट्रैकिंग एरर बोलते हैं, ट्रैकिंग लॉस बोलते हैं ईटीएफ के केस में, और इसमें हम अल्फा बोलते हैं म्यूचुअल फंड के केस में, अल्फा कितना जनरेट किया है। अगर वो अल्फा नेगेटिव है अपने लास्ट 3 साल के पीरियड में, तो आपको वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस भी म्यूचुअल फंड ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा है, उसका जो अल्फा है वो पॉजिटिव जनरेट हुआ है अपने इन्वेस्ट से, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप मनी कंट्रोल पे जा सकते हो, मनी कंट्रोल इसी बेसिस पे रेटिंग्स देता है, उसके बेस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। This question already being answered that अगर इनफेक्टिव रहती है तो I can have a 10, मतलब we can see a 10-15% correction. Do you recommend investing in steel, cement and infra stocks like ACC, Larsen? Kiran ji, I'm very sorry, I just forgot to cover this steel sector. स्टील सेक्टर में सर क्या हुआ है पिछले 3 साल में ना, ट्रम्प और चाइना की लड़ाई में जिस तरीके से चाइनीज जीडीपी डाउन हुई और जिस तरीके से चाइना का कंजम्पशन डाउन हुआ, तो स्टील सेक्टर को एक बहुत बड़ा हिट मिला, और हमने देखा स्टील सेक्टर को सबसे ज्यादा मार पड़ी। और इनफैक्ट मेरा डेली नवभारत गोल्ड में जो है वो एक 4:30 बजे इंटरव्यू आता है, जिसमें हम लोग उस दिन और नेक्स्ट डे के मार्केट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। और जिस दिन से ट्रम्प इलेक्शन हारे हैं, हम ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव स्टील स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप स्टील स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, बिकॉज अब चाइना की जो जीडीपी है वो भी 5% से ग्रो करनी शुरू हो गई है, और इनफैक्ट चाइना जो है वो फेरस नॉन फेरस मेटल्स में की उसने बाइंग भी चालू कर दी है, तो जिसका एक सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी स्टील कंपनीज को मिलेगा। स्टील में अगर मैं अच्छे स्टॉक्स की बात करूं तो जेएसडब्ल्यू स्टील इज अ गुड स्टॉक, टाटा स्टील इज अ गुड स्टॉक, स्टील अथॉरिटी में आप बाइंग में रह सकते हैं। सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो लास्ट 2-3 दिन से सीमेंट स्टॉक्स में एक नेगेटिव न्यूज आ रही है कि इन्होंने कार्टेल बना के जो है वो स्टॉक प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करी है। तो अभी थोड़ा सा आपको बचना चाहिए जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ जाता सीसीआई की तरफ से। जब एक बार सीसीआई की तरफ से इसका सॉल्यूशन आ जाता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब जब भी कभी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ता है हमारी कंट्री के अंदर, तो हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो काफ़ी सारी जो स्कीम्स लेके आती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसलिए लेके आती हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ आवर कंट्री। इंफ्रा से सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट रह सकते हैं। और नॉट फुली कम्प्लीटली बट एल&टी मुझे इसके लिए बेस्ट लगता है कि अगर इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट भरते हैं तो प्रॉक्सी आपको एल&टी में उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड, और जो रह गया है तो आप लोग मेरे नंबर पे आप सभी के पास है ही है,
तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। तो मैं प्रोबेबली फोकस फंड जो अभी मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, और जो एक दो चीज़ें जो कंप्लायंस अभी एज अ पब्लिक स्पीकिंग अलाउ नहीं करती, तो वो हम लोग अलग से बात कर लेंगे। तो ललित जी, अगर आपका परमिशन हो तो हम सेकंड टॉपिक के ऊपर चलें। ठीक है, आप जा सकते हैं। Please, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ द बेसिक्स ऑफ द चार्ट। चार्ट टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है सर? टेक्निकल एनालिस्ट आपको रेंज बता देता है कि ये स्टॉक ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, 10 रुपए का स्टॉक है, 12 रुपए पे का रेजिस्टेंस है, 12 रुपए से फिर ये 10 रुपए हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, देन टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प यू आउट। पर आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, देन अगेन यू हैव टू फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, जहाँ पे आपके पास ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए, जहाँ पे आपके पास आपको पता होना चाहिए ईपीएस ग्रो करेगी नहीं, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के कैश फ्लोज क्या है, वो बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ जनरेशन के लिए। पर फ्यू पीपल वांट टू हैव लाइक कि हाउ अबाउट द ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट्स हेल्प करते हैं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। तो बेसिक्स ऑफ द चार्ट क्या होता है? देखिए सब, बेसिक्स ऑफ द चार्ट ये होता है कि चार्ट ये मान के चलता है कि प्राइस एक्शन जो होता है वो अपने आप को रिपीट करता है, और प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। प्राइस के अंदर सब कुछ छिपा है, प्राइस एक्शन में आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे मैं आपको एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग चैनल बोलते हैं, जहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने ये एक ट्रेंड लाइन है जो आपने खींचा, और एक आपने पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचा, तो आपने ये देखा कि प्राइस जो है वो इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। और ये आवरली चार्ट है। जनरली क्या होता है कि जो फोर्थ फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो चाहे ऊपर के चैनल की तरफ हो और चाहे नीचे की चैनल हो, जनरली फोर्थ फोर्स में जो स्ट्रोक होता है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो अगर आप इस चैनल में देखो तो इस तरह का जो ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ये ऊपर गया फर्स्ट, फिर नीचे आया सेकंड, ऊपर गया थर्ड टाइम ऊपर गया, और जब फोर्थ टाइम ऊपर गया तो गोल्ड जो है वो यहाँ से आपका वापस ऊपर आ गया। तो आपका ये जो पैरेलल लाइन है, जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं, ये अगर इसने ये चैनल ब्रेकआउट दिया है तो एक बड़ा मूवमेंट आता है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का। आप ये देखिए यहाँ पे जब ये मूवमेंट आया तो अप्रोक्सीमेटली इसने करीब गोल्ड ने 400 रुपए का मूवमेंट दिया, और गोल्ड के अंदर आपको 400 रुपए का प्रॉफिट आपको मिला है। तो ये एक पैरामीटर है। सेकंड, एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग फिबोनाची थ्योरी बोलते हैं। फिबोनाची थ्योरीज में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 23%, 38%, 50%, 61.8% और 100%। फिबोनाची थ्योरी ये कहती है कि कोई भी स्टॉक अगर 100 रुपए बढ़ा है तो उसमें 23 रुपए का रिट्रेसमेंट आना चाहिए। मतलब जहां से भी वो नीचे आएगा वहां से वो अगर अपने मूवमेंट से नीचे से वो 100 रुपया बढ़ा है तो 23 रुपए नीचे में सपोर्ट दे सकता है। 23 रुपए के बाद उसमें 38% का दूसरा रेजिस्टेंस होता है, 50% का तीसरा होता है, और जो चौथा सबसे बड़ा होता है वो होता है 61.8%, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 61.8% से आपका वो स्टॉक जो है उससे नीचे आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आप ये चार्ट देखिए, ये हमने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट लिया, मतलब जिस समय गोल्ड 48,868 था, यहाँ से यहाँ, सॉरी ये नीचे लो से हाई का बनाया 47,500 से लेके हमने
जो हाल में हाई बना था 50,209, ये दोनों के बीच का हमने फिबोनाची लेवल दिखाया बनाया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे इसने 0 हो गया था, वापस जब इसने 23% का दिया तो इसी के आसपास इसने यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी गोल्ड आप अगर देखो तो ये नीचे आया और आने के बाद वापस इसी लेवल पे उसने 38% पे रिट्रेसमेंट लेके इसने नीचे किया, पर ये ट्रेंड लाइन नहीं छोड़ा। तो सिमिलरली यहाँ पे 23% के आने से पहले 494 आने के पहले ही इसने अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट पहले ही जो है वो करेक्शन ले लिया और इसने नीचे आना शुरू कर दिया। अब अगर मंडे की बात करें तो ये चार्ट बोलता है कि गोल्ड को नीचे में 49,100 का या 49,080 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में जो इसको रेजिस्टेंस रहेगा वो 49,500 का रहेगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड को हम 50,000 रुपीज भी आते हुए देख सकते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि 49,500 के ऊपर में एंट्री करनी है, पर 50,000 कैसे? पहला रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 49,800 का, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही लास्ट टाइम जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, जैसा मैंने कहा प्राइस एक्शन अपने आप को रिपीट करता है, तो 50,200 के आसपास यहाँ पे वापस करेक्शन आते हुए बन सकता है। तो ये चार्ट आपको एक ट्रेडिंग के लिए बता रहा है, और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉप लॉस। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ 49,800 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस नीचे का ये सपोर्ट लेवल होगा विच इज 40,868। तो इससे मैं 15-20 रुपया नीचे लगा दूंगा, बिकॉज अगर ये लेवल के नीचे अगर गोल्ड आधा घंटा भी ट्रेड करता है तो सीधे 48,244 पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट बैठता है। तो दिस इज वन पैटर्न जो कि हम लोग चार्ट में देखते हैं। सेकंड, हमें चार्ट ये बताता है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट का मतलब ये होता है कि बाइंग उसमें बहुत ज्यादा हो गई है, लोगों को अब एनएक्स लोगों को अब बिलीव कम हो रहा है कि ये रैली चलेगी, फिर भी वो रैली मिस कर चुके हैं, इसलिए वो एंटर कर रहे हैं। तो इस तरह का जब माहौल बनता है और वहां से जब करेक्शन आने की उम्मीद होती है, तो हम लोग कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको देखते हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंडिकेटर आपका चलता है वो इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी जिसको हम लोग आरएसआई बोलते हैं। आरएसआई जनरली आपकी 70 और 30 के बीच में इंडेक्स पर स्क्रिप्ट्स की ट्रेड करती है। 70 के आसपास काफ़ी बार हमने देखते हैं कि वो ओवरबॉट हो जाती है और नीचे आती है, पर जिस तरह की लिक्विडिटी जब सिस्टम को हैवी लिक्विडिटी ड्राइव करती है तो हम इसको कई बार 85 और 90 पे भी आते हुए देखते हैं। तो देखिए, आप जब नॉर्मल सिचुएशन चल रहा था तो ये जितनी बार 70-72 के आसपास पहुंचा था, मार्केट करेक्ट कर रहा था, मार्केट करेक्ट करने के बाद वापस ऊपर जा रहा था। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने जब 70 को क्रॉस किया तो मार्केट ने नया हाई बनाया और अभी भी वो नए हाई की तरफ चल रहा है। आपको कभी भी आरएसआई को 70 के ऊपर देख के शॉर्ट नहीं करना है। बहुत सारी जगह आप जाओगे, बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे, टेक्निकल लोगों से बात करोगे, वो आपको एक चीज बताएंगे कि 70 के ऊपर आपको सेल कर देना है, 30 पे बाइंग करनी है। और मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस भी ऐसे ही शुरू हुई थी। 2008 या 9 की बात है। मेरे एक फ्रेंड आए और उन्होंने बोला कि यार एक बहुत अच्छी चीज मिल गई। मैंने कहा क्या? बोले ये देखो, हमने लाइफ में पहली बार चार्ट देखे। मैं कानपुर रहता था, बहुत छोटी जगह, तो वहाँ पे तो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है जो आज हमें बॉम्बे में अवेलेबल है या जो आज इंटरनेट के जमाने में अवेलेबल है। मैंने कहा क्या है? तो बोले यार ये एक लाइन है, ये आरएसआई था। बोले ये 70 टच करे तो नेचुरल गैस बेच दो, 30 आए तो ले लो। हमने 5 मिनट के चार्ट में उसको लगाया और खूब बैटिंग करी। 2 या 3 शॉट तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गए, और उसके बाद जब बॉलर्स ने हैट्रिक मारना शुरू किया तब हमें समझ में आया कि ये 70 की लाइन क्या होती है और 30 की लाइन क्या होती है। देन वी स्टार्टेड इट, और धीरे धीरे हमने ये देखा कि जिस समय आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है, लोग बोल रहे हैं 70 पे शॉर्ट मारो, पर 70 पे अगर ये 70 के ऊपर जा रहा है, दैट मींस मार्केट इज गोइंग टू मेक अ न्यू हाई। वो अपने पिछले हाई को तोड़ेगा, बिकॉज जब रॉकेट आपका ऊपर जा रहा है तब आप उसको रोकने की कोशिश करोगे। वो ऊपर ही जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, वो आपको हर्ट करेगा, वो आपको तोड़ते हुए ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जब वो रॉकेट इस तरीके से वापस नीचे का साइन मारता है, देन दैट इज द टाइम जहां पे आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। और आपको आरएसआई जब 60 का लेवल ब्रेक करे तब अगर आप शॉर्ट करते हो तो इट विल बी अ बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर यू, इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट। पर अगर वो 70 के ऊपर है, दैट मीन्स इट्स इन अ डेंजर जोन। और मैंने तो पिछले 5 साल से कभी भी आरएसआई 30 के नीचे गई है या 70 के ऊपर गई है
तो मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड ही मारा है, मैंने 70 के ऊपर हमेशा उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को डेली चार्ट्स के ऊपर बाय किया है और 30 के नीचे मैंने उसको सेल ही किया। जब क्रॉसओवर आता है, क्रॉसओवर का मतलब जब वो वापस टूटता है तभी हम उसको सेल करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा सर, यहाँ से जब करेक्शन भी आएगा ना तो बहुत हैवी करेक्शन आएगा, बहुत डिप करेक्शन आएगा, जिसमें जितना भी लीवरेज है सिस्टम से वो लीवरेज आपका खत्म हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द RSI, जिसमें आप RSI को ट्रैक करके आप ये देख सकते हो कि आपका मार्केट जो है वो ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, या अभी सिंगल वन डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अगर अभी मैं डेली चार्ट्स की बात करूं तो डेली चार्ट में RSI ने वापस एक अपसाइड लेवल लिया है। तो अब ये जब तक फ्राइडे का लो नहीं काटता है, ये RSI ये देखिए, ये नीचे आते आते जिस तरीके से इसने टर्निंग ली है, तो अगर ये टर्निंग अगर इसने फ्राइडे का लो नहीं काटा तो ये टर्निंग वापस ऊपर हो जाएगी। और जितनी बार ये टर्निंग लेगा, मतलब नीचे आके ऊपर आएगा, उतनी बार ये अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगा और मार्केट नए हाई की तरफ जाएगा। आप ये देखिए, यहाँ पे इसने टर्निंग ली नीचे की, फिर यहाँ से इसने वापस रिबाउंड किया, RSI ने वही पुराना लेवल टच किया, लेकिन मार्केट ने नया हाई बना दिया। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने नीचे आया, फिर मार्केट ने ऊपर गया, पर पुराने RSI का लेवल नहीं आया, तो इसने नया हाई नहीं बनाया और वापस एक करेक्शन दिया। लेकिन जैसे ही इसने पिछले हाई को टच किया RSI ने, आप देखो ये एक लेवल तक आ गया। इसके अलावा अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो, स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप जॉबिंग करना चाहते हो, तो भी आपकी RSI हेल्प करता है। कैसे करता है? I've got a friend शुभादीप नंदी, ये उनका ढूंढा हुआ था फॉर्मूला। आपको सिर्फ ट्रायंगुलर पैटर्न्स निकालने हैं चार्ट के ऊपर और वो ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है। तो मैं अभी बात करूँ तो ये आपका ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं बनता है, तो इधर कहीं बनेगा। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आपने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट 1 मिनट के चार्ट पे दिया। अभी RSI में आपको बनाना है ऐसे ही कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपने ये देखा। जनरली लो से हाई की तरफ आप जब देखते हो तो आपको ट्रेंड लाइंस बनती हैं और ट्रायंगल बनते हैं। तो देखिए, जब ये 1 मिनट के चार्ट के आप ऊपर काम कर रहे हो, आप सिर्फ जॉबिंग कर रहे हो। जॉबिंग का मतलब होता है 7 to 8 to 10 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा आपको जॉबिंग में नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे ये RSI ने भी ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया, इसने भी 1 मिनट के चार्ट पे ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया। आपने यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट मारा, आपको 10 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे देखिए RSI वापस इस ट्रायंगल के अंदर जा रही है, यानी मेरे को यहाँ पे अभी शॉर्ट नहीं रहना है। और अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर क्रॉस करती है आपकी वापस 13,518 या मान लीजिए इस लेवल पे 520 का लेवल वापस क्रॉस करती है, तो आप 10-15 पॉइंट्स के लिए आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। ये आपको ऐसे दिन, ये ट्रायंगल आपको देख देख के एनालिसिस कर करके बनाते रहने हैं। जितना आप इसका एनालिसिस करके आप बनाते रहोगे, उतना ही आप पूरे दिन में जॉबिंग करके आप पैसा बना सकते हो। मोबाइल ऐप्स के ज़माने के आने के बाद क्या हो गया, सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो गया। जोमेटो आ गया, आपने आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया। तो सिमिलरली अब क्या हो गया, लोगों को ना सब लोगों का कहना है सर कुछ इजी आप बता दो। तो इजी के लिए अगर आप केवल देखना चाहते हो तो एक इंडिकेटर होता है सुपर ट्रेंड, जिसका काम है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है वो बताना। तो अगर आप केवल किसी भी आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे मैं tradingview.com यूज़ करता हूँ, आप tradingview.com पे आप निफ्टी लगा लीजिए, निफ्टी के अंदर जाके आप एफएक्स के अंदर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने सुपर ट्रेंड लगाया, सुपर ट्रेंड में आपको एक चीज़ ये देखनी है कि जितनी बार ये 5 मिनट के चार्ट में आपका ग्रीन लाइन बनी हुई है, तो ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि आपको लॉन्ग करके चलना है। लॉन्ग कहाँ पे करना है, आप ये देखिए, इस कैंडल ने सुपर ट्रेंड की लाइन को क्रॉस किया, ये कैंडल सुपर ट्रेंड की लाइन को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे इस कैंडल के बाद ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा,
इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तब आपको बाय करना है, और आपको ये तब तक रखना है जब तक सुपर ट्रेंड वापस शॉर्ट का साइन नहीं दे देता। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल पे आया, इसने शॉर्ट का साइन दिया, वापस ऊपर गया, और यहाँ पे आके इसने आपको वापस लॉन्ग का दे दिया। तो 5 मिनट के चार्ट में आप ये जॉबिंग कर सकते हो। इसका एडवांटेज ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, पर जैसे ही मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है उस समय ये इंडिकेटर आपका काम नहीं करता है। तो अगर आपके 1 या 2 स्टॉप लॉसेस इसमें ट्रिगर हो रहे हैं तो आपको उसी समय इसका यूज थोड़ा कम कर देना चाहिए। अगर आप निफ्टी के 3 या 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 या 2 लॉट पे ही ट्रेड करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निकल्स। हम आगे के सेशंस में और एडवांस भी इसमें कवर अप करेंगे। अगर आपके कुछ टेक्निकल्स रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आई थिंक मनीष जी ने पूछा था हाउ टू प्ले इन निफ्टी ओनली, तो वो हमने अभी इसमें कवर किया हुआ है। यूनाइटेड प्रॉस्पेरस यूपीएल अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड शेयर है। सर एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी में अगर कुछ भी प्रमोटर रिलेटेड फंड साइफनिंग की न्यूज़ आ जाती है तो उससे आप तुरंत अलग हो जाइए, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अलग हो जाते हैं। इज देयर एनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट टू अंडरस्टैंड एवरीडे मूवमेंट एंड एक्सप्लेन? आप moneycontrol.com को रेफर कर सकते हैं, tradingview.com को आप रेफर कर सकते हैं। मनीष जी, हम लोग 10,3 का सेटिंग लेते हैं सुपर ट्रेंड में। तो 10,3 का सेटिंग का मतलब ये हो गया कि 10 पीरियड्स का डेटा और एटीआर जो है, एवरेज ट्रेडिंग रेंज जो है, उससे हम 3 का मल्टीपल कर लेते हैं। Somebody has asked what is the percentage level of accuracy of all charts? सर ये आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप चार्ट्स को कितना एनालाइज अच्छे से कर रहे हो। तो इट इज अगेन अनिरुद्ध जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। आरएसआई डाइवर्जेंस एक ऐसी चीज है जो आपको पहले से करेक्शन के बारे में बता देती थी। अगर आपका प्राइस ऊपर आ रहा है और प्राइस के साथ साथ आपका आरएसआई ऊपर नहीं आ रहा है, आरएसआई कंजेस्ट हो रहा है, मतलब आरएसआई फ्लैट चल रहा है या आरएसआई नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आरएसआई और प्राइस में डाइवर्जेंस हो रहा है। प्राइस ऊपर है, आरएसआई नीचे है। आने वाले टाइम पे आपको एक मार्केट में करेक्शन आ सकता है। सिमिलरली प्राइस आपका नीचे आ रहा है और आरएसआई फ्लैट है या आरएसआई ऊपर जा रहा है, उसको भी हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहेंगे, क्योंकि प्राइस नीचे है और आरएसआई ऊपर है। तो उस केस में भी आपका जो हम ये मान सकते हैं कि जो मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था वो शायद अब खत्म होगा, और जैसे ही अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा ये स्टॉक चलने लगेगा। यस बैंक, बिल्कुल सर, जैसे ही उसकी रेटिंग्स चेंज हुई है वैसे ही वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो गया है। सॉरी भरत जी, मैं आई एम नॉट ट्रैकिंग द सीपीआर इंडिकेटर, तो आई कांट टेल यू अबाउट दिस सीपीआर एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम। जैन जी ने पूछा है हाउ मच मैक्सिमम निफ्टी लुक्स ऑन अ हायर साइड। सर देखिए, जो ऑप्शन डेटा बोल रहा है, ऑप्शन डेटा 13,800 14,000 के लेवल्स बोल रहा है, जो हमको नियर समय में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 12,800 और 13,000 के लेवल पॉसिबल हैं, पर उसके लिए शायद नेक्स्ट वीक में 13,350 का टूटना जरूरी है, बिकॉज नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो 13,350 जो है वो 13,350 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम इन द चार्ट? सर देखिए, कई तरह की एनालिसिस होती है, तो उसमें से वॉल्यूम भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप ये देखते हो कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या हैवी वॉल्यूम हुआ और उसके बाद ट्रेंड में क्या चेंजेस आए। अगर ट्रेंड में चेंजेस आए हैं तो इसका मतलब ये है कि somebody with a news has cornered that stock, that particular script, और आने वाले समय में उसमें आप उस पर्टिकुलर ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। बट अगर वो स्टॉक एफएनडो में लिस्टेड है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उस वॉल्यूम के साथ में ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का क्या रिएक्शन रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा है और प्राइस और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है तो दैट मीन्स इन अ नियर टर्म फ्यूचर दैट स्टॉक इज गोइंग टू मूव अप। वॉल्यूम आपका बढ़ा है, प्राइस कम हुआ है, अगेन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, पर सॉरी प्राइस आपका डाउन साइड गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो आपका इसका मतलब है उसमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं और वो स्टॉक को आप शॉर्ट कर सकते हो। सर आई रियली डोंट नो अबाउट दिस आरकॉम एंड टाटा टेली स्टॉक, बिकॉज साल भर पहले मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि आरकॉम लूँ या वड़ा पाव। आई थिंक आरकॉम में तो
मनीष जी, सुपर ट्रेंड का सेटिंग 10,3 आप रख सकते हो. I think most of the questions have been answered and this is the first time that I am enjoying this with a 32 questions. मतलब मुझे याद नहीं आता कि पहले किसी सेमिनार या वेबिनार में 32 क्वेश्चंस पूछे गए हो मार्केट से रिलेटेड. तो इट वाज रियली वेरी इंजॉयबल और टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला. आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू नीलेश जी, ललित जी, एवरीवन हियर प्रेजेंट कि आप लोगों ने संडे को अपना टाइम दिया. और मेरे लिए ये एक आज का सेशन हिस्टोरिकल सेशन हो गया है जिसमें 32 क्वेश्चंस पूछे गए. मैं रियली आपको बता रहा हूँ 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा जो है कभी नहीं पूछे गए. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंकफुल. Thank you, Kiriaji, for spending your valuable time here. It is said in the stock market that if you want to earn 1 lakh rupees, you have to invest 1 crore. But this will not be the situation after we hear your lecture. Now, straight away request Pradeep Chandwani to propose a well-deserved vote of thanks. Well, it will be my privilege to thank our today's speaker. But before I propose the formal vote of thanks, I would like to share some 2 things today. While this lecture was going on, I received a SMS. You know, like everyone receives an SMS today. क्या आप stock market में 5 से 50 बनाना चाहते हैं? Then I said नहीं, हमारे पास नितिन केडिया जी already हैं, तो we don't require your services. This is reply to that message. Actually, I did not reply, but what I meant to say was that was the first thought that came to my mind today. Secondly, very important thing today and yesterday, if you see, there was a slight drizzle around. So everybody was thinking, यार ये ठंडी के मौसम में अचानक से बारिश क्यों गिर रही है? So again, my thought with respect to the stock market was that everyone is thinking, यार ये market हर जगह खुला नहीं है, economy is going down, but ये market क्यों ऊपर जा रहा है? On similar lines, I think our questions have been answered today. Okay, what suddenly has happened that the market is going up, whereas the outlook of everyone has been that no, the economy is down, the markets have not opened up, but still stock market is on a high. So I sincerely believe that we have got the answers to the questions which were there like in the morning. Now I'd like to start a formal vote of thanks with BCSC. And all on behalf of all our attendees and the panelists, we would like to thank you for a very good explanation to the stock markets, taking us through the technicalities, taking us to the investment patterns, and also how to trade, when to enter, when to exit. I believe all the questions of our attendees have been taken care of. Thank you very much, sir, for being part of BCSC once again. And we are very overwhelmed to have you year on year. Actually, every time whenever we require your services. Thank you very much, sir, for an excellent presentation. Thank you, Nitin ji. Thank you, Nilesh bhai. Thank you everyone. Thank you, Nitin sir. Thank you so much. Thank you. With this, we end today's lecture. Thank you all. Okay. We'll end the meeting. Yeah. You have to end it. Myself, I have to end it. Because I made you host.